Hello students, welcome back to my channel. This is me Nikki Gupta and I am going to teach you economics of class 11 and class 12. In this video, I will cover microeconomics. I have already given the introduction of microeconomics in my previous video. If you have not seen that video, please go and watch this. In today's video, I am going to cover concept of demand. So what are the factors that affect demand? Price is the related concept of demand. Now factors affecting demand. Factors affecting demand is first price of its own good. Price of a good. प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, तो अगर किसी गुड को हम परचेज कर रहे हैं उसका प्राइस बढ़ जाता है. इफ द प्राइस इंक्रीजेस फॉर अ कमोडिटी then the demand curve will be inversely related. So demand curve will be like this. Here we will denote the quantity and this is price. Quantity will, if price will increase, quantity will decrease. This is price, initial price, this is new price. This is initial quantity, this is new quantity. So this is the first factor that affect demand. Second is price of related good. Now what are related good? Related good include two things, that is complementary goods and substitute goods. Complementary goods and substitute goods. And substitute goods. These both are related goods. कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में हम पूरक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विदाउट इंक देर इज नो यूज ऑफ पेन. सो इंक एंड पेन आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड. अदर एग्जाम्पल इज पेट्रोल एंड कार. विदाउट पेट्रोल और डीजल और CNG we can't use car. So there is no use of car. So these are complementary goods. And substitute goods का क्या मतलब? Substitute goods वो होते हैं if price of coke increase, कोक का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो हम पेप्सी पीना स्टार्ट कर देंगे. या फिर if price of tea increase, then we start taking coffee. So these are substitute goods and these are complementary goods. There are so many examples of substitute and complementary, but I am giving you example of this only. You can derive more example from internet. Now इनका कर्व कैसे बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री का कर्व कैसे बनेगा? For negatively related. For example, if price of, here we will take pen and ink. If price of ink increases, then demand for pen will decrease. This is complementary. तो ये हमारा like this. This is our demand curve for complementary good. अब सब्स्टिट्यूट का कैसे बनेगा? सब्स्टिट्यूट में अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ it will be like this. हम
हमने एग्जांपल लिया था कोक का, कोक एंड पेप्सी का, तो हियर कोक एंड पेप्सी। अब पेप्सी के प्राइस बढ़ेंगे तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, तो यहाँ हम प्राइस लेते हैं, कोक की क्वांटिटी ली है हमने और पेप्सी का प्राइस लिया है। स्टूडेंट्स, इनिशियली इट विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हैं और सब्स्टिट्यूट गुड कौन से हैं, उनका कर्व कैसे बनता है, बट व्हेन वी डू प्रैक्टिस वी विल क्लैरिफाई इट। Now, income of consumer. How income of consumer affect our demand? This is the third point. First point is price of own good. Second is price of related good. It includes complementary and substitute good. Third is income of consumer. How income affect? If our income increase, here we will take income, here quantity. If our income increase, our demand for goods will increase, but different गुड्स के लिए different डिमांड कब बनेगा। फॉर एग्जाम्पल गिफन गुड्स कैसे होते हैं, जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स, और अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग डिमांड का इफेक्ट होगा। तो इनकम में ओनली इनकम नहीं आएगी, इनकम में अलग अलग सिचुएशंस होंगी हमारी। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इनकम में हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा, इंफीरियर गुड्स, लग्जरी गुड्स, इंफीरियर होते हैं बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, लग्जरी मीन्स हमारे वो फैशन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज नेसेसिटी गुड, जो हमारे वी कैन नॉट अवॉइड देम, अनअवॉइडेबल गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मैच स्टिक एक्सेट्रा। तो ये हमारे इनकम से रिलेटेड होते हैं, 3 ऑफ देम। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। Other factor that affect our demand is अदर फैक्टर्स में आ जाएंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो हमें समर क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमारी प्रेफरेंस क्या होगी, समर क्लोथ्स, तो समर क्लोथ्स की ज़्यादा डिमांड होगी। ऐसे ही अगर सर्दियाँ आ गई तो वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो दिस इज द प्रेफरेंस एंड टेस्ट। कंज्यूमर को कुछ चीज़ें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी डिमांड करनी होती है, तो ये हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर में आ गया। नाउ सीजन एंड क्लाइमेट। How season and climate affect our demand? For example, अब हम गर्मियाँ हैं तो हम रेफ्रिजरेटर की डिमांड करेंगे। अगर कहीं बाढ़ या सूखा आ जाता है तो वहाँ पे हमें खाने की चीज़ों की कमी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा डिमांड हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, फूड,
तो सबसे ज़्यादा हमारी फूड की डिमांड वहाँ इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे सीजन और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो दीज आर द फैक्टर